Good evening. How are you? Hello, Raviji. Good evening. I'm good. How are you? Good. Everybody has their share of problems. Who is in his job, or maybe who is somebody who is studying and is a student, or maybe who is a housewife. Some people get stuck in the problem. They get stuck and they are not able to move beyond that problem. So why is that? Are we genetically pre-programmed to see problems in that way? Partially, yes. In fact, to a great extent, we have been conditioned to see some situations as challenging. Anything that we see as a threat. So we feel that, okay, something is in danger. Something about me is in danger. Right? For example, if we are being called on a stage to speak, Yes. and suddenly we have like our heartbeats is going up and down, butterflies in our stomach, suddenly it's a big problem, At least that's how our mind perceives that. Why? Because the ego is under the threat. The comfort zone is under the threat. So anything that our mind perceives as a threat is a problem for us. Any situation that we feel we are not capable to deal with is a problem. That's what I believe we define as problems. I just got an insight that when we were, hunter gatherers, many years back. Yes. So just for an example, maybe early man was sitting with his family and he would have seen something move in the bushes. Yeah. So then everybody would have gotten alert. Right. So I think that has carried on till today also. Yes, it's being passed on from one generation to next. That, hey, be watchful. And if you notice, most of the times the way we live, we have our guards up. Our guards are up. We want to protect ourselves. We want to survive somehow. And right now, although we are not living in jungles anymore, we know we are safe in our houses. But still, there is a part of us which is always vigilant. And the moment anything happens that we feel we are not capable to deal with, right, it becomes a problem. So as a child, if I saw my parents incapable to deal with something, again, it is so deeply conditioned that it becomes a problem for me also. Well, that may not be true. Well, that might not be true. Maybe that is not my truest potential and capacity that I'm exploring. Maybe I'm not just exploring my true potency, but I have just learned to be that way. Like, I don't know if you might have noticed, there are people who are very shy to speak. Yeah. And most of the times their children are also very introvert, reserved. They don't speak much. So whenever they find a situation where they have to go out and speak, they might avoid it. For them, it is a problem. And it's a threat for them. How will I survive in a social gathering? No, sorry, I can't. I don't want to go. I can't talk. Why? Because that's what they have learned. I was kind of that. Oh, is it? Oh my God, it doesn't look like that. Before some meteor hit me. Before? A meteor. Because before slowly it changed, and then it took a long time. I was an introvert, but you have mentioned that, and so that was a problem. But I don't think it's not. Yeah. So you said that we raise our guards as soon as we perceive that there is a problem. Yeah. What if we raise our guards, then are we able to solve the problem, or are we able to see the possibilities? What happens? See, not really. We can only see the possibilities when we are in no resistance zone. But when I say we have our guards up, what I mean is, the moment we perceive anything, we start resisting it. So having the guards up means I have already put up my resistance, my walls around me. That's sorry, I don't want to face it. And in order to not face it, generally what I have seen in my career is either people numb themselves or they switch to some or the other kind of addiction so that they do not have to face with the real problem. So having guards up means you have certain resistance towards some situation in your life. And in order to avoid it, you just create more of those problems. So one problem will give birth to 2-3 more problems. If we resist. If we resist. Yeah. But the moment, we put down our guards, and if we are willing to receive it, that okay, I'm willing to receive it, bring it on. And suddenly I'll see that, okay, this is a situation, but, I'll start seeing the possibilities beyond it, the possibilities that this situation has brought in my life, which I would otherwise not see if my guards are up and if I'm resisting. So maybe like you said something about guards, maybe they are like maybe Yes, like all of us have different guards, because it totally depends upon our belief system. I just want to share one example. There was this lady who was not happy in the marriage.
She is living separately. The husband was abusive. She wants to get divorced, but the problem was, what will people say? How will the society judge me? So now for her, the problem is that she is not willing to be judged. She is not willing to be seen a particular way. Now, imagine if she does not have this guards up, if she's willing to receive those judgments, if she's like, okay, I'm okay I just want to live my life, no matter how people see me, how they judge me. Can you imagine the possibilities beyond this particular, so-called problem? There is so much that is possible. It could lead to like hundreds of different doorways. But maybe she can become a big writer. The possibilities are endless. They are infinite in nature. She might just have a lot of fun, because since last few years, all that she's doing is trying to control that, the situation in her life, to be in that zone, because somewhere it has become a comfort zone. And the real problem is not divorce. The real problem is, how will I face the world? Still, the abusive husband is not the problem. Right. That's not a problem, because she has already left him. The problem is, if I give divorce, how will I be perceived by the society? Because somewhere, now that's a comfort zone. And anything beyond the comfort zone is what we label as a problem. Anything beyond our comfort zone is a problem. Anything that we are not willing to receive, accept, becomes a problem. But we do not realize that the real growth lies beyond it. Probably once this lady learns that lesson, that like, who will judge me and who cares? Like, I'm the hero of my life. I choose what I have to do. I choose what works for me. And like, really, who's actually judging? No one. But in our mind, maybe in her mind, she has made it so significant and so huge that she herself has become small, and this whole problem has taken over her. And suddenly when she, when she let go of this point of view, and suddenly when she was like, oh my God, like, really, how does it matter? And what's the problem here? So, as long as we are stuck with the right and wrong, good and bad, we keep perceiving problem as bad, as wrong, as something that should not happen. No, I can't face it. But the moment we let go of the attachments, the meanings that we have given to it, and suddenly we will see, okay, what is it? I can live life my way. And if there is this situation, I know it is going to lead to greater possibilities. Those perceived problems break in a matter of seconds if you get the awareness. Yes, it's like, yes, in a microsecond, it's like you're out of it, and you'll be like, what was that? Really, what was that me? Because suddenly you do not believe in it anymore. And it might not be easy. Yes, I know that. It might be difficult. But you really have to ask, is it going to create greater for me? Basically, I never ask someone, raho ya mat raho. That's not my job. Yes. My job is to bring you to take you to a space where these point of views do not bother you. And you are willing to see, oh my God, where did I pick this point of view from? It is not working for me, And it is like, my life is stinking because of this stupid point of view. I do not have to stick to it anymore. And suddenly you let go of that point of view. And that problem is not a problem anymore. So, in previous session we were discussing, slightly I'm taking off track, that maybe life is not we are not in life to, maybe life is about having fun. And maybe, if we see problems as an obstacle to something greater, and not get into the emotion of the problem. We maybe sometimes get emotionally attached to the problem, or some problem has come and we get some XYZ emotion. Yeah. And we get attached to that emotion, and then we love it, and we are not able to come out of it. Exactly, because then that becomes a comfort zone for us. Yes. Have you seen a lot of people, something must have happened like 10 years ago, 20 years ago, but they're still talking about it as if it just happened 2 days back. So a lot of times we carry that problem as a badge on our shoulder, that, hey, look, this happened with me. Know how difficult life I have seen. So, and then you want to live in that zone of, you want to be that victim of that problem. I mean, it is so unconscious. You don't want to do it, but that's what actually happening. With this, I have one theory that current year is 2022. And, I think some people are living in 1980. Some people are living in 1992, for example. Some people are living in 2000. So they have not come to the present time. And in those times, they are stuck with their own problems and their own mindsets. And they have not, the real freedom for them will be to come out of that, the jail
all our definitions, point of views, judgments, most of the times create our own projection, which looks like a problem. Like the example that I just gave, and there are so many other examples, you know. So most of the times we are projecting something on the reality. Actually, there is no problem, but my own projection, my own point of view makes it a problem. How should we see problem now? So now we have realized that problem. So now how should we see? Should we see it as a possibility? Absolutely. Okay. Absolutely. What if the problem was actually a doorway to greater possibilities? Yeah. Right. So what if I ask, you know, when I ask that, okay, what are the possibilities? Okay, first, number one, what are my point of views around this situation that is making me label it as a problem? मेरे सिचुएशन के प्रति क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या माइंडसेट है जो मुझे ये इसको एक प्रॉब्लम की तरह दिखा रहा है? आपको पॉइंट ऑफ व्यू हिंदी में बताना। दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। या फ्रॉम व्हिच एंगल, हम किस एंगल से देख रहे हैं। राइट। तो मैं सिचुएशन को, मैंने इसे क्यों प्रॉब्लम बनाया हुआ है, मेरा क्या दृष्टिकोण है इस सिचुएशन के प्रति कि मुझे लग रहा है कि लाइफ में ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। और अगर मैं अपने वो पॉइंट ऑफ व्यूज, तो सबसे पहले तो है ना, और हो सकता है बहुत कुछ निकल के आएगा, एक्चुअली एक लिस्ट बन सकती है। वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, हाँ. तो उसमें समझो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखा है, भाई आई हैव दिस प्रॉब्लम, एंड देन ही राइट्स कि मेरे इस प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ जहाँ से मेरे ये दृष्टिकोण के हिसाब से मैं ऐसा ऐसा देखता हूँ, एंड ही विल नॉट, एट लीस्ट इफ ही राइट्स 10 पॉइंट्स, ही विल गेट मोर अवेयर। राइट। तो बेसिकली हमने हर एक प्रॉब्लम के लिए लिख दिया कि प्रॉब्लम नंबर 1 है ना, फॉर एग्जांपल कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। एब्सोल्युटली। राइट। अब मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो लेके मेरा क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे क्या दृष्टिकोण है, मेरा क्या धारणा है, मेरी क्या बिलीफ्स है बेसिकली। राइट। मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इसके अराउंड, और उसकी वजह से मुझे कैसा फील हो रहा है। राइट। तो हो सकता है एक इंसान को जॉब नहीं मिल रही हो का ये मतलब भी हो सकता है कि शायद उसके अंदर बहुत कुछ, वो एक एंटरप्रेन्योर हो और वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हो, या हो सकता है वो वो एक सर्टेन जगह जॉब करने की जगह मे भी कुछ और कर सकता हो, या शायद उसको शायद फर्दर स्टडीज की पॉसिबिलिटीज है। मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी सारी निकल सकती है इस चीज में से। लेकिन जब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज निकालता है इसके अराउंड और वो पाता है कि मैंने कहीं ना कहीं मुझे ओके क्या पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इसके अराउंड, ओके आई एम अ लूजर, क्योंकि 22 साल तक तो नौकरी लग जानी चाहिए, अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ मतलब मैं एक लूजर हूँ। वो पहला पॉइंट लिख दिया उसने, फिर क्या अगला पॉइंट क्या लिखा? हाँ, फिर अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो कल को लोग क्या बोलेंगे। तीसरा पॉइंट मेरे ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ सकती है। चौथा पॉइंट, और ऐसे वो पूरी लिस्ट बना सकता है। तो बेसिकली आप देखेंगे जॉब अभी नहीं लगा उतनी बड़ी समस्या नहीं है, जॉब लग सकता है या वो कुछ भी कर सकता है। समस्या ये है जो उसने ये लिस्ट बनाई है, और जिस घड़ी जिस मोमेंट में उसने ये सारी अपनी लिस्ट को रिलीज कर दिया, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को उसने खत्म कर दिया, उसने कहा यार नहीं, ये मैं लूजर नहीं हूँ, एक जॉब से मैं लूजर नहीं बनता हूँ, सॉरी ये मैंने पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से ले लिया। तो एक बहुत अच्छा टूल है एक्सेस कॉन्शियसनेस करके मोडालिटी उसका, वो बोलते हैं ओके हु डज दिस बिलोंग टू, ये किसको बिलोंग करता है। मतलब ये जो लूजर का टैग है ये कहाँ से आया? मैंने कहाँ सीखा कि अगर इस 22 साल तक जॉब नहीं लगती है तो वो इंसान लूजर बन जाता है। राइट। तो द मोमेंट यू आस्क ओके हु डज दिस बिलोंग टू, इज इट रियली माइन, एंड यू विल रियलाइज नो इट इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, ये तो मैंने कहीं ना कहीं से मेरे अंदर इम्प्लांट किया गया है। मतलब मैंने ये कहाँ से सीखा, ये जो लूजर है, मेरा जॉब नहीं लगना है, लूजर होना, ये कहाँ से सीखा? शायद उसके पेरेंट्स में से। मैंने किससे ले लिया, हो सकता है पेरेंट्स से, हो सकता है रिलेटिव्स, हो सकता है फ्रेंड्स। और फिर मैं पाता हूँ कि अरे यार ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम 50वें साल में किए, 60वें साल में किए, तो मैं लूजर कैसे बनता हूँ इसमें? और ये किसने बोल दिया कि मेरी सेल्फ वर्थ इस जॉब से डिसाइड होएगी। राइट। और एंड देन व्हाट इफ ही रियलाइजेस दैट इफ यू न्यू यू कुड नॉट फेल, अगर आपको पता है कि फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती है, लूजर नाम की कोई चीज नहीं होती, तो आप क्या कर सकते थे लाइफ? और वो इंसान बोलता है कि तो मैं अपना स्टार्टअप चालू कर सकता था, वो कुछ भी कर सकता था बेसिकली, क्योंकि अब उसके मन में वो डर ही नहीं है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या। तो आप देखेंगे ज्यादातर ये जो डर है वो सिचुएशन का नहीं है, ये डर मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज का है, और फिर हम उसको प्रोजेक्ट करके और बड़ा बना देते हैं। एग्जैक्टली। अब मैंने उसको मेरे सारे पॉइंट ऑफ व्यूज प्रोजेक्ट करके मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और हम देखते हैं पीपल कमिट सुसाइड्स, हम क्या क्या नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, और आप देखेंगे क्या है उसके पीछे पॉइंट ऑफ व्यू, कोई एक माइंडसेट है, कोई एक पर्सपेक्टिव है। अच्छा उनको पूछना क्या ये सही में तुम्हारा है, क्या तुम लेके पैदा हुए थे उसको? नहीं, वी आर नॉट बोर्न विद दोस पर्सपेक्टिव्स, तो वी आर बोर्न विद एम्प्टी, खाली पेपर लेके आए हैं।
और उसके ऊपर मैंने पॉइंट ऑफ व्यूज की बड़ी लिस्ट बना ली। बुर्ज खलीफा बना दिया हमने पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, और अब वो बुर्ज खलीफा ही दिख रहा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम्स का पहाड़ दिख रहा है मुझे मेरे आगे। तो लाइफ में कितना कुछ है जो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो सोल्यूशन है। मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो एक सोल्यूशन का पार्ट है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही हमने अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण बदला ना, जैसे अभी हमने बात की, ये जो हमने लिस्ट बनाई इसको फाड़ के फेंक दी, बोले अब बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं फ्री हूँ करने के लिए जो मुझे करना है। और आप देखेंगे लोग चाय की टपरी खोल खोल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तब वो इंसान चाय की टपरी भी खोल सकता है। हाँ, बहुत सारे चाय स्टार्टअप्स आ गए हैं। यस, सो व्हाट एल्स इज पॉसिबल। यहाँ पे मैं एक और टूल शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ पे, और अगर ये समस्या को मैं समस्या नहीं बनाता, इसको मैंने ये टैग नहीं दिया होता, तो इसके पीछे वो कौन सी संभावनाएं हैं जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये टैग दे दिया है प्रॉब्लम। इसके पीछे और क्या संभावनाएं छुपी हुई है। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, हम उनका नामकरण चेंज करके संभावना का पॉसिबिलिटी कर देते हैं। Yes, what if it was a possibility disguised as a problem? They could replace any problem. Tell me any problem कि I'm not getting a job. Then we can say कि I have a possibility of doing a startup. Reverse, Right. reframe करें उसको। अब आप देखिए 6 महीने तक वो इंसान बहुत एंजाइटी में रहता है, जॉब नहीं लग रही, एंड सडनली 6 महीने बाद उसको क्लिक करता है, वो ये पॉइंट ऑफ व्यूज की लिस्ट बना के फाड़ के फेंक देता है। अब वो कहता है चलो स्टार्टअप करेंगे, टपरी खोलेंगे चाय की। और अगले 2 साल बाद उसका बड़े बड़े बिजनेस मैगजीन्स में उसका नाम आता है कि करोड़ों का टर्नओवर हो गया है चाय की टपरी का। और फिर जब वो पलट के देखता है और डॉट्स कनेक्ट करता है, वो पाता है अरे यार शिट, वो तो प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो सोल्यूशन था। सो मैं इनफैक्ट जो लोग ये देख रहे हैं, जो लोग ये सुन रहे हैं, और मैं इनवाइट करूंगी उनको कि आपकी लाइफ में अभी तक जो कुछ भी हुआ है जिसको आपने प्रॉब्लम लेबल किया है, क्या वो वाकई में प्रॉब्लम थी या वो पॉसिबिलिटी थी जिसकी वजह से हम जहां हैं वहां पहुंचे हैं? कैन वी जस्ट लुक बैक टुडे एंड कनेक्ट दोस डॉट्स? So then this is another tool which you have come up with, connect the dots back. So if you face some problem now, अभी कोई प्रॉब्लम आ गया सामने, then sit back and connect back कि यार यहाँ तक कैसे पहुंचे अपन। Then हमको समझ में कि यार पहले भी 2500 प्रॉब्लम आई थी, वो सॉल्व किया था हमने, तो यहाँ पहुंचे। Then वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको आगे। Exactly. तो अगर मैं वो सर्वाइव कर सकता हूँ, अगर मैं वो चीज को के आगे पॉसिबिलिटीज ढूंढ सकता हूँ, तो मैं आज इस चीज के आगे भी ढूंढ सकता हूँ। Absolutely. So you have made a new tool, connect the dots to back. हम लोग आगे की डॉट कनेक्ट करते हैं कि जो हुई भी नहीं है कि यार ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा करके हमारे जो है बुर्ज खलीफा बना देते हैं प्रॉब्लम्स का, which are not there. Yes, which is our projection. I asked this lady that hey, अगर ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, ये पर्सपेक्टिव नहीं होता, ये बिलीफ ही नहीं होता, अगर ऐसा कुछ पता ही नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि लोग कुछ बोलते हैं, लोग हमें जज करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं, तो तुम क्या कर रही होती? She said मैं बहुत सारा फन कर रही होती। तो हमने कहाँ पे कंक्लूड कर दिया है कि जिसके बियॉन्ड हम देखना नहीं चाहते हैं, और ज्यादातर हम पाएंगे वो जो दीवार है जिसके बियॉन्ड हम नहीं देख पा रहे हैं, वो दीवार हमारे खुद के बहुत स्टूपिड सी पॉइंट ऑफ व्यू है और कुछ भी नहीं है उससे ज्यादातर समय वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैंने देखा है वाकई में जब कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई बीमारी या कुछ इस तरीके की बहुत गंभीर कोई समस्या, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है वो। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैंने कई लोगों से सुना है कि जब आर्मी में जब वॉर की प्रिपरेशन होती है तब बहुत अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, लेकिन जब आप एक्चुअली वॉर फील्ड में होते हो, आप बैठ के बॉम्ब की बरसातें हो रही है, लेकिन आप है ना उसके पीछे, टीलों के पीछे बैठ के आप अपना खाना खा रहे हो, आप जोक्स क्रैक कर रहे हो, आपके आसपास बॉम्ब गिर रहे यानी जब आप एक्चुअली when you are into it, ज्यादातर समय हम क्रिएट करते हैं, इमेजिन करते हैं प्रॉब्लम, जबकि होती नहीं। ज्यादातर हमारी इमेजिनेशन, जब हम सोच रहे हैं अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, वो हम उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम रियल में उस बैटल फील्ड में होते हैं तो इट इज नॉट रियली as big as we have thought it to be. तो इसका मतलब ये है कि हमारे सामने प्रॉब्लम आए, हम उसको एम्पलीफाई नहीं करते, rather than बैटलफील्ड में जाके उससे लड़ाई करें, सॉल्व करें। Let's face it. Let's receive it. क्या बोलो now what? Because as long as you are resisting it, you are actually creating more anxiety, because you are like you want to run away from something. You are like, how can this happen with me? How will I deal with it now? I can't. So it's all your, the whole voice inside your head telling you that no, I can't. I just cannot face it. Why did this happen with me? Trust me, there is a huge possibility beyond that. Let's be willing to see those possibilities. तो हमें प्रॉब्लम को ये कहना चाहिए कि आने दो देख लेंगे। मतलब अगर कुछ आ चुका है तो let's face it.
हाँ, और हम इमेजिनेशन में क्यों जिए उसके जो हुआ नहीं है उसकी, बिकॉज कोई चीज जब सच में होती है तो ही हम उसको फेस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, बजाय कि हम इमेजिन करें उसका सामना करोगे कैसे जो चीज है ही नहीं रियल में। कोई पर्सन के ऑलरेडी लाइफ में 2-4 प्रॉब्लम्स होंगी, प्लस वो 40-50 प्रॉब्लम इमेजिन करके बैठा हुआ है। एग्जैक्टली हाँ, हाँ, मैंने एग्जैक्टली 4 की जगह 40 मतलब व्हिच आर नॉट देयर, व्हिच डोंट हैव एनी बेस, वो बना के बैठा है। हाँ, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया ना कि अभी जॉब नहीं लग रही है, मैं 22 हाँ, का हूँ, कल को मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कल को तो इसकी मेरे को मेरी सिस्टर की शादी भी करानी है, और अभी तो मेरे पापा भी रिटायर होने वाले हैं, अब वो चीजें हुई नहीं, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है, उसको नहीं पता क्योंकि 6 महीने बाद वो टपरी खोलने वाला है जिसका 2 साल बाद करोड़ों का टर्नओवर होने वाला है, यू गेटिंग इट? तो हम वो इमेजिन कर रहा था जो चीज होने भी नहीं वाली है, और वो खुद को परेशान कर रहा है। तो इफ वी कुड समराइज दिस ऑल इन हिंदी, तो हाउ वुड यू डू? मैं ये बोलूंगी समराइज। मैं ये बोलूंगी कि जिसको हमने समस्या का नाम दिया हुआ है, हो सकता है वो हमारे जीवन की सिर्फ एक परिस्थिति हो, वो हमारा पूरा जीवन नहीं है, और अगर हम उस समस्या को समस्या बोल के इतना बड़ा ना बनाए तो उसके उसके परे हम कौन सी संभावनाएं देख सकते हैं जो अभी हम खुद हमारे दृष्टिकोण हमारी धारणाओं की वजह से देख नहीं पा रहे। और तो ये जो हमने टूल शेयर किया कि सबसे पहले तो हम एक लिस्ट बना लें कि ये सिचुएशन है, ये स्थिति है, ये परिस्थिति है, मेरे को जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे क्या क्या महसूस हो रहा है, मेरी क्या क्या दृष्टिकोण है, मेरे क्या क्या डर हैं, मेरी क्या क्या विचारधारा है, मेरी क्या क्या धारणाएं हैं, और उस लिस्ट को मैं जब देखूं और पूछूं कि इनमें से कितने वाकई में मेरे हैं, ये दृष्टिकोण मुझे कहाँ से मिला कि अगर मैंने इस समय तक ये नहीं हुआ तो फिर फॉर एग्जाम्पल मैं लूजर कहलाऊंगा, या फिर लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या ये वाकई में सच है, क्या ये वाकई में मेरे जीवन का सच है, या एक वो झूठ है जो मैंने इस समाज से या लोगों से अनकॉन्शियसली, मतलब मुझे पता भी नहीं चला और वो मैंने उनसे ले लिया और खुद का बना लिया। एक और चीज़ है तुम दृष्टिकोण के बारे में कि क्या ये हमारे कंट्रोल में है क्या? अगर हमने लिख भी दिया कि ये ऐसा-ऐसा होगा पर हमारे कंट्रोल में है क्या? राइट तो हो सकता है हमारे कंट्रोल में नहीं हो। तो अगर कंट्रोल में है तो फिर क्या उसका लिख के मतलब? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और ज्यादातर चीजें बार हम उसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती नहीं है। नहीं होती है। सही। हमारे कंट्रोल में हमारा दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण हमारे कंट्रोल में है। हुँ। और आप पाएंगे कि जब मैंने पूछा कि अच्छा ये किसका, ये मेरा है, और हमको लगेगा ये मेरा है ही नहीं, ये तो मैंने पता नहीं कब मेरा बना लिया, हमने उन सबको वापस भेज दिया कि जिसका दृष्टिकोण है मैं उसको लौटाता हूँ क्योंकि ये मेरा नहीं है। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज, दृष्टिकोण, बिलीव्स, जजमेंट्स, अच्छा बुरा सही गलत, मैं लौटा रहा हूँ, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं मुक्त हूँ उन सब चीजों से। Yeah, then I तो would अब मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ अपने जीवन में? in English आप ये कह सकते हैं, you can say कि problems are door to possibilities. यस Problems kind of एक चाबी हैं जो possibilities के दरवाजे खोलेंगे। यस, और हमेशा अब पाएंगे वो प्रॉब्लम नहीं, उसमें उसके पीछे कोई सोल्यूशन छुपा है, देयर इज सम सोल्यूशन, उसके पीछे कुछ लर्निंग है, कुछ सीखने की चीज है, शायद जो सीखने के लिए हम आए हैं, हम पैदा हुए हैं, हम जी रहे हैं, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना ट्रेजर है। you know डोरेमोन में एक एनीवेयर डोर होता है, आपने शायद कभी देखता, मैं तो उसमें ना वो बोलते हैं कि एनीवेयर डोर आ जाता है और वो गेट खोलते हैं, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। मे बी प्रॉब्लम्स आर डोर टू एनीवेयर वेयर यू वांट टू बी, जहाँ आप जाना चाहते हो, यस, जहाँ आपने सोचा भी नहीं, हमारे माइंड में भी नहीं आता कि हम वहाँ पहुँच सकते। डोर टू एनीवेयर। राइट, तो अगर मैं समस्या को समस्या नहीं देखते हुए एनीवेयर डोर देखती एनीवेयर डोर बोल सकते हो। तो मैं कहाँ पहुंच सकती हूँ, वो मुझे कहाँ ले जाने के लिए आया है? हाँ, हमारे सामने रहते हैं डोर, लेकिन हमको नहीं दिखते हैं कि नहीं यार ये तो डोर है, आगे दिखते हैं ना, उसके ऊपर लेबल लगा रखा है प्रॉब्लम, उसको देखोगे प्रॉब्लम ना लिखो। तो वो डोर देखेगा कौन? तो जाके लेबल मिटा के पॉसिबिलिटी लिख दो। हाँ, हमें एंड ट्रस्ट मी, ये लेबल्स जब हम हटा देते हैं, मीनिंग्स जो हमने दे दिए हैं, ये डेफिनेशंस जो हमने बना दी हैं उसके प्रति, जो पॉइंट ऑफ व्यूज हमने क्रिएट कर लिए हैं, जो हमारी खुद की धारणा है जो हमें उसको इतना बड़ा दिखा रही है, बुर्ज खलीफा दिखा रही है, इसका बोझ जैसे ही मैंने हटा दिया, मैं एकदम से पाऊंगी कि यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मतलब मैं क्यों इतने समय से इतनी चिंता में थी? Then you are lighter than air and then you can take wings and fly. Wow, so well said. So very well said. Then you're lighter than air and then you can just take your wings and fly. You are free from that mental cage. Thanks for the knowledge and the sharing you have done, and we'll meet next week with some new topic which will come up. Okay. Absolutely. Okay. Thank you for asking those amazing questions, Raviji, and for the wonderful insights.